شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میں خوش ہوں کہ آپ دوبارہ سے اپنے ٹائم پر کلاس میں جمع ہو گئے، ایزی ہو کے، ریلیکس ہو کے ابھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ خدا نے انسان کو روح القدس دینے کا وعدہ کیوں کیا۔ دراصل اس دنیا سے محبت خدا نے رکھی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان لائے، یہ جو لفظ ایمان ہے اس کا مطلب ہے یقین، اس کا یقین کرے تاکہ ہلاک نہ ہو۔ جب کوئی یقین نہیں کرتا پھر ہلاکت ہے۔ خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اس نے اسی محبت میں 5 بڑے کام کیے ہیں۔ پہلی بات، اس نے آسمان کو چھوڑا، زمین پر آ گیا، انسانوں کے درمیان 30 سال رہا، 3.5 سال اس نے انسانوں کی خدمت کی، ان کے بیمار ٹھیک کیے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، کچلے ہوئے جو تھے، بالکل ریجیکٹڈ لوگ تھے، ان کو ساتھ ملایا، کوڑی جو تھے انہیں شفا دی، مردوں کو زندہ کیا۔ کیا آپ کو بتائیں کہ کیا کچھ نہیں اس نے کیا۔ جو روزگار میں فیل تھے، جن کو ڈھنگ نہیں تھا کہ کس طرح سے بزنس کریں، انہیں بزنس کے طریقے بتائے۔ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ان کو طریقہ نہیں کہ کس طرح سے جال ڈالنا ہے، ان کو جال ڈالنا سکھایا۔ بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کی خوراک سے ان کی اون بڑھتی ہے، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، ان کو بتایا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور یہ داؤد بادشاہ کی اس دعا کو، اس دعوے کو پورا کر دکھایا کہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب خداوند چپان ہوتا ہے، خداوند رہنما ہوتا ہے، خداوند لیڈر ہوتا ہے تو پھر کمی نہیں ہوتی۔ پھر اس سے پتہ چلتا ہے خدا انسان سے نہیں ڈرتا، بلکہ انسان جو ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ قربت میں آتا ہے خدا کی۔ جب پتہ چل جائے کہ پیرنٹس جو ہیں، جو والدین ہیں، وہ بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، نہ بچے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں، نہ پیرنٹس بچوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے بٹوین، ان کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت سکھاتی ہے، اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ماں باپ، والدین بچوں کو کہتے ہیں اس ٹائم اٹھنا ہے، صبح تو اٹھنا ہے، کیونکہ انہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، کیونکہ اگر وہ اس قدر اس طرح کی چیزیں کھا لیں گے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا اپنے ٹیکنیکل اسکول میں جا کے تو سوئے رہے، تو اس لیے والدین کہتے ہیں اس طرح کی چیز کھاؤ۔ ہمارا خدا ہمیں کھانا بھی سکھاتا ہے، کون کون سی چیزیں کھانی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کھانی، کون سی چیزیں پینی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں پینی، کن جگہوں پر بیٹھنا ہے، کن جگہوں پر نہیں بیٹھنا، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن لوگوں سے نہیں ملنا، کس طرح سے رہنا ہے،
कपड़े किस तरह के पहनने हैं, जूतियां किस तरह की पहननी है, फसलें किस तरह की उगानी है, ये सब कुछ हमारा खुदावंद जो हमारा चुपान है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने अपनी प्यारी जान सलीब पर दे दी। सलीब पर जान देने की बात जो है वो इस तरह से जान उसने नहीं दी। ये गौर तलब बात है, इसको लिखकर अंडरलाइन कर लें। इस तरह से जान नहीं दी जिस तरह हम लोगों की जान कह देते हैं फलां ने दम दे दिए, फलां की जान निकल गई, फलां की जान खत्म हो गई। इस तरह की नहीं है। ये एक ब्रीक पॉइंट है। यीशु ने अपने मुंह मुबारक से ये कहा था कि मुझे अपनी जान देने का और फिर ले लेने का इख्तियार है। उससे कोई उसकी जान नहीं लेता, ना छीनता है, ना लेता है। उसको ना कब्र बंद रख सकी, ना मौत मार सकी, ना शैतान छेड़ सका, ना रूमियों का जुल्म उसे डिफीट कर सका। नहीं। जब हम कहते हैं उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो उसने जान दे दी किसको? ऐ बाप, मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। उसने दिया है रूह, ऐसे नहीं दे दी कि कोई उससे ले गया। और फिर उसने अपना रूह लिया थोड़े वक्त के लिए। ये पल झपकने की बात है। बाप से मिल गया, बाप में इन हो गया। जैसे उसने कहा यूहन्ना की इंजील में, मैं और बाप एक हैं। जैसे बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, तुम हम में हो। यह कितना बड़ा शर्फ है मुकद्दसीन को। बाप में चला गया जैसे वो था इब्तदा में। यह है रूह देना, कि वो सलीब से बाप में चला गया। और फिर यही बात शागिर्दों को यीशु ने अपने मुंह मुबारक से कहा कि मैं जाता हूं फिर आता हूं। दुनिया मुझे नहीं जानती, दुनिया मुझे नहीं देखती, ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे देखते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूंगा। इसलिए मसीह ना मर सकता था, ना मर सका, ना कोई उसे मार सका, ना मार सकेगा। तो वो कभी भी इस तरह की लैंग्वेज में, इस तरह की ग्रामर में, इस तरह की जुमला बंदी में आ ही नहीं सकता। इस तरह के दिमाग में, जो इंसानी दिमाग है, आ ही नहीं सकता। रूमियों के खत में लिखा है, रूहानी आदमी रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के। इसलिए यीशु को कोई समझ नहीं सकता, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना सिख, ना कोई और। कोई समझ ही नहीं सकता। जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और जिस मुल्क का कोई होता है, जिस खानदान का कोई होता है, वही उनकी लैंग्वेज समझता है। खुदा के लोग खुदा की बातों को समझते हैं, मसीह के लोग मसीह की बातों को समझते हैं। जिनमें मसीह का रूह है वो मसीह को समझते हैं, और जिनमें मसीह का रूह नहीं, वो दुनियादारी के तौर पे तुक्के लगा लगा के सोचते हैं, हाँ उसने ये कहा होगा, उसने ये कहा होगा, उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। फिर उसके जी उठने की बात, तीसरे दिन जी उठा। बाइबल कहती है तीसरे दिन जी उठा। अब तीसरे दिन कहते हैं जी उठा, लेकिन साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूहानी बातें हैं। तीसरा दिन कैसे बनता है? वहां पर लिखा है सब्बत का शुरू है, तो जल्दी जल्दी दफन कर दो। अगर सब्बत का शुरू है तो सब्बत का मतलब तो हफ्ता है।
इसका मतलब है जुमे की शाम उसको दफन कर दिया और हफ्ते का दिन वो कब्र में रहा और अतवार के दिन जी उठा। तो मसीह ने कहा था 3 दिन 3 रात, यूना की बात कही। फिर फकीयों फरीसियों को कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और ये जो नाम नेहाद ग्रुप है पादरियों का, जो मौलम बने हैं, जो डॉक्टर बने हैं, अलामा बने हैं, इनको कोई कहे कि तुम साबित कर दो कि 3 दिन कैसे बनते हैं, इनकी आड़ में मरज़ई बोंगियां मारते हैं, क्योंकि मरज़इयों के अंदर तो खुदा का रूह है नहीं। मरज़ई तो खुदा से ना वाकिफ है, वो ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है। उनका अपना मिर्जा कभी कहता है मैं औरत हूं, कभी कहता है मैं मर्द हूं, उसको खुद ही नहीं पता। कोई ऐसा भी होता है कभी जो कभी कहता है मैं मर्द हूं, कभी कहता है मैं औरत हूं, तो उसको इंटरनेशनल तौर पे गूगल पे जाके आप देख लें कि वो कौन होता है जो कभी कहता है मैं मर्द हूं। ये एक बीमारी है कि एक मर्द कभी कहे मुझे औरत की फीलिंग्स आती हैं और कभी कहे मुझे मर्द की फीलिंग्स आती हैं। ये मुकद्दसीन की बात नहीं होती, ये नबी पैगंबरों रसूलों की बातें नहीं है। ये किस तरह से उन्होंने ये प्ली ले ली, वो प्ले, वो बात, वो खेल पादरियों ने जो बोंगियां मारते हैं उनकी वजह से है कि जुमे वाले दिन स्लीपर दे दिया। ये कंस्टेंटाइन की बात है जिसने ये गेमें खेली हैं, जिसने ये इस तरह की बोंगी मारी है। मसीहत में मसीह के मानने वाले मसीह के दुश्मन हैं। 12 शिगिर्दों में ही भोसा लेकर सौदा करने वाले हैं। आज भी बड़े बड़े इज्तिमा बनाकर, बड़े बड़े क्रूसेड कायम करके, बड़े बड़े कन्वेंशंस मुकर्रर करके, बड़े बड़े चैनल बना के वही यहूदास करयूती हैं जो नाम यस्सु का लेते हैं, बगलगीर यस्सु से होते हैं, जफ्फियां यस्सु को डाल रहे होते हैं, चूम यस्सु को रहे होते हैं, पर अंदर से वो किसी और के साथ सौदा करके फिर रहे होते हैं। सौदा उनका कोई और है, किसी और तरफ से वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इन बातों पर ख्याल और ध्यान करें। यीशु मसीह से कोई उसका रूह ले नहीं सकता, कोई उसकी जान ले नहीं सकता। वो किसी से नहीं डरता। और उसने कहा कि रूह लो, क्योंकि शागिर्द कमरों के अंदर बाला खाने में दरवाजे बंद करके, कुंडियां लगाकर, चिटखड़ियां लगा के, होड़े रुकावटें बनाकर बैठे हुए थे, रूमियों से डरते थे, क्योंकि रूह कुद्दस के बगैर थे। उनके अंदर रूह कुद्दस नहीं था। वो एक स्टूडेंट थे, उनको डिग्री नहीं मिली थी। स्टूडेंट जब तक उसके पास डिप्लोमा या डिग्री या प्रूफ ना हो, उस वक्त तक कोई उसको तालीम याफ्ता नहीं कह सकता। और वो स्टूडेंट कह नहीं सकता कि मैं एमफिल कर चुका हूं, या मैं पीएचडी कर चुका हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं इंजीनियर हूं। वो कभी भी प्रूफ नहीं कर सकता। वो दिखाई देता है कि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास किताबें हैं, उसके पास ड्रेसिंग है, उसके पास कार्ड है, उसके पास रोल नंबर है, उसका नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन उसकी डिग्री प्रूव उस वक्त होगी जब उसके पास मुकम्मल तौर पे एक सर्टिफिकेट होगा। और सर्टिफिकेट देता है वहां का इंचार्ज, जिसने कहा है कि अब ये इस काबिल है कि इसको दिया जाए। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों के खौफ के और उसके डर को तोड़ने के लिए उनको कहा, सलाम, तुम्हारी सलामती हो, शलूम,
और फिर उनको कहा रू लो, फूंक मारी। उनके अंदर का खौफ, उनकी मुर्दा हालत, उनके नातवा बदन के अंदर कुव्वत डाली, जैसे आदम के बुत के अंदर बारी ताला ने, खुदावंद खुदा ने फूंक मारी और वो जीती जान हुआ। इसी तरह ये मर चुके थे अंदर ही अंदर। इनको पता था कि अभी के अभी लोग आएंगे, हमें पकड़ेंगे, घसीटेंगे, मारेंगे, क्योंकि हम यीशु के पैरोकार रहे हैं, हम यीशु के सहूलतकार रहे हैं, हम यीशु के प्रचारक रहे हैं। इसलिए अंदर ही अंदर वो मुर्दा हालत में थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे, उनके अंदर कांप रहे थे, उनके जिस्म से गोया जान निकली हुई थी। और मसीह ने उस मुर्दा हालत के पहले 10 शागिर्द, फिर 11 शागिर्द, और फिर 7 शागिर्द, और फिर आप देखते जाएं कि 500 लोगों को, फिर यकूब को, जो उसका भाई है, जिसे बाद में बिशप बनाया गया, उनको दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई दिया, और जिस को दिखाई देता रहा उनको वो उठाता रहा, उनके अंदर नया रूह फूंकता रहा, और साथ ही उनको कहा गया ठहरे रहो। अमाल की किताब अगर आप पढ़ें, और अगर आप यूहन्ना की अंजील में पढ़ें, तो वहां पर भी है ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अमाल की किताब में भी लिखा है ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और इसका पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही चला है। जब पौलुस पर यीशु जाहिर हुआ, वो भी जाके तो रुका रहा खुदा के बंदा के पास, और जब रुका रहा तो फिर उसके दुआ करने से उसकी आंखों के छिलके, आंखों के पर्दे खत्म हो गए। जब शागिर्द रुके रहे तो उनके अंदर का खौफ का छिलका टूट गया, और वही पतरस, अमाल की किताब आप पढ़ के देखें, वही पतरस जाके कह रहा है, फकीयों फरीसियों को खुले आम कह रहा है, जरा इस पर ध्यान दें। उनको कह रहा है कि मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं हवाला, कि ये अमाल 2 बाब है और उसकी 36वीं आयत में, बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों अब हम क्या करें? ऐ भाइयों अब हम क्या करें? ये वही शागिर्द हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, और अब वही शागिर्द हैं जो फकीयों फरीसियों सदूकियों और कहनों के सामने कह रहे हैं कि तुम लोगों ने यीशु को मसलूब किया। और अब वही फकी फरीसी सदूकी कहन सारे कह रहे हैं, ऐ भाइयों, रसूलों को कह रहे हैं, ऐ भाइयों अब हम क्या करें? और पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। ये है जब रूह अंदर आ गया आदम के अंदर तो वो जीती जान हुआ, और जब ये रूह शागिर्दों के अंदर आ गया तो शागिर्द जीती जान हो गए, बहादुर हो गए, दलेर हो गए, और आंखों में आंखें डालकर बेबाक होके यीशु के गवाह बन गए।